how to meet your how to meet your guru. Then I learned about the gift, and the Archangel Michael I learned. The Vajra, I went through that Yeah. meditation. Yeah. Yeah, so that much I kind of went to it. And I also, in between, I opened the Kalpa Vruksh one, that I did. Oh my God, you have done so much. That's So I just had 3 days, so I just did whatever I could in these 3 days. Good evening. good evening. Good evening. So, what brought you here in Akashic? I think I had lots of intuitions always, but I did not know how to channelize it. Lots of astral traveling happens in my dream. I kind of meet other people. All those things were happening, but I did not know how to channelize it. I was even, I think, attacked once. So I did not know. Everybody was laughing at me, saying it's a dream, but it was so near and everything, but nobody's able to understand me. So I thought, let me channelize this and understand. Is there something that I don't know, or maybe it's just a hallucination? What it is, I don't know. So I'm just trying to understand. Nobody believes me, but I thought, let me try and understand what I'm going through. Is it something different, or is it true? We are different. We are different. There is no need to prove others. We are very different. Yeah, so I thought, let me channelize it and let me go through the right path in a proper way, so nothing goes wrong. Okay. And I Is my love sound helping others. clear? I hope my sound is clear because she Yes. is conversing with me in a very clear way. So, Gitanjali, check your network, please. And my main thing is to help others. I really love that. So Mhm. I'm very good with that. I know that. It's just that I want to channelize it, help also in a right and a correct direction. I don't want to fool around and just go ahead and say whatever it is. But I want to True. really learn and help someone and not spoil anyone's life. Truly said. So, this is a service line. So, you are into a service line, that means, right? What do you do? Yes. So I kind of work for a corporate. Mhm. So I lead a team. So I lead a team of 20 people. So I kind of work and help them also sometimes with all these issues and all. But I stopped because I was not sure if I'm doing it right or wrong. Why? Because I did not have a formal, something like a guru saying me, no, Veena, you're in a right direction. You're doing right. So I was little hesitant, like, what if I'm wrong? So I thought, let me learn it properly and then only I should do and help people. Okay, that's understood because any new line would give you this kind of doubt, right? This Yes. is the new line for you. So that's okay. So But welcome to your Akashic field. thank you. Thank you so much. Okay. कोई और input देना चाहेगा? What is Akashic? Like last time we did what is Akashic, right? Ashwini आई है इस बार. Ashwini, Akashic क्या है? What is Akashic? आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारा जो डीएनए प्रिंट है या फिर जो कर्मा है उसका रिकॉर्ड. ओके, सो इसको यूज कैसे करेंगे हम? इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है आकाशिक? Why are we sitting and doing this today? क्योंकि ये मतलब ये मेरा मानना है कि कोई भी चीज हो जिसमें हम अटके हैं तो कभी कभी सारे जगह दरवाजे ठोक के भी हम लोगों को वो आंसर नहीं मिलता है जो यहाँ पे मिलता है. And you believe आपको आंसर मिला है because आप मेरे साथ थी? हाँ हाँ. आंसर मिला है. और इसमें हाँ 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 और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे ये भी मैंने सीखा आपसे कि हम इस चीज को हील भी कर सकते हैं और अगर उतना खुद को भी डेवलप किया और सामने वाले का भी उतना अच्छा कर्मा रहा तो इस चीज को हम धीरे धीरे चेंज भी कर सकते हैं. ट्रू करेक्ट. तो ये सब आपने किया है, रिजल्ट आया हाँ आपको? कुछ हाँ शेयर आया कर सकते हो आप? क्या रिजल्ट आया? मैंने एक्चुअली ये ज्वाइन किया था हेल्थ पर्पस के हिसाब से और हाँ. माइंडसेट का शिफ्टिंग, ये दो पैटर्न हाँ. थे तो उसमें हेल्थ में भी मुझे इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है.
हम्म, और माइंडसेट भी बहुत पॉजिटिव हुआ है। हम्म, और ट्रू। अब जिस दिन आकाशिक सुबह मैं खोलती हूँ उसका मेडिटेशन या फिर हीलिंग करती हूँ, तो दिन ज्यादा अच्छा और पावरफुल जाता है कंपैरेटिवली अदर डेज, क्योंकि शायद उसमें मुझे पर्पस मिलता है दिन भर का, या फिर कोई डायरेक्शन मिलता है कि किस तरीके से चैनलाइज हो रही है एनर्जी, क्या क्या करना चाहिए। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद में। वेरी करेक्टली सेड। सो इसमें काफी चीजें होती है आकाशिक में। थैंक यू अश्विनी। अश्विनी इज माय ओल्ड स्टूडेंट, जो जो एक्चुअली जब वो बात करती है तो बहुत क्लियरली बात करती है। आप लोगों ने देखा कितने क्लियरली शी स्पीक्स। शी आकाशिक में यही चाहिए हमें। आकाशिक में जाके वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। बिकॉज जब आप कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ, आप संगीता से पूछ सकते हो अगर कुछ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग या समथिंग लाइक दैट। बट व्हेन यू हैव ओपन योर आकाश एंड you are in that field where your masters are waiting कि आप आओगे, आपकी हीलिंग होगी, क्योंकि आपकी सोल की हीलिंग है, ये सोल का जर्नी है, ये बॉडी का जर्नी है ही नहीं। राइट? तो जब हम आकाशिक खोलते हैं, जैसे अभी अश्विनी ने बोला कि जब मैं खोलती हूँ तो उस दिन बहुत अच्छा जाता है मेरा। ऐसे कितने लोगों का है जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आकाशिक खोला और वो बहुत अच्छा जाता है उस दिन। एंड इफ यू वुड लाइक टू ऐड सम मोर, सो प्लीज आप लोग भी कुछ बोल सकते हो। कितने लोगों का है इधर कि जिस दिन आकाशिक रिकॉर्ड खोलते हो उस दिन अच्छा जाता है? हैंड रेस भी कर सकते हो अगर अनम्यूट नहीं करना है तो। ये और कोई आरती है, राइट? हेलो मैम। हेलो ममता। मैम, आकाशिक से बहुत अच्छा फील होता है मैम, और एनर्जी भी बहुत अच्छी जाती है। हाँ, तो करेक्ट। तो ये लोग जो बोल रहे हैं, इन लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया है जो उनके आकाशिक फील्ड ने उनको दिए। राइट? हम नहीं चूज करते हैं इस क्लास में कौन आता है, ना आप चूज करते हो इस क्लास में आना है। नो, ये चॉइस होती है आपके हायर सेल्फ की। हम मार्केटिंग करते हैं, सब करते हैं, बट नॉट नेसेसरी हमने पूरी दुनिया को अट्रैक्ट किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आकाशिक पढ़ाते हैं आजकल। कोरोना के बाद तो इतना सब कुछ आया है, और वहां से पढ़ने के बाद इधर आके भी पढ़ते हैं, ये आप सबको पता है। राइट? बोलते हैं कि वहां पे कुछ सिखाया नहीं है, जो जैसा भी है, या उनको समझ में नहीं आया। बट आकाशिक आजकल क्यों ज्यादा हो रहा है, स्पेशली कोरोना के बाद? क्योंकि सोल्स एलिवेट हो रहे हैं। एक ना सोल का जर्नी होता है, जब अर्थ जिस हिसाब से रिवॉल्व इवॉल्व करता है, वैसे ही हम लोग भी इवॉल्व होते हैं। जब हम लोग इवॉल्व होते हैं, अगर आप ये देखोगे, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा इवॉल्व है, हमसे ज्यादा दे नो व्हाट दे वांट एटलीस्ट। आज की जो जमाने का जो बच्चे हैं, दे आर एआई किड्स, राइट? मैम, जेनजीज उनमें बोल। क्लैरिटी ज्यादा है। क्लैरिटी ज्यादा, करेक्ट, उनमें क्लैरिटी ज्यादा। सो दैट मीन्स अभी क्या हो रहा है, सोल का जो एक सर्कल होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स अभी वो सोल्स आ रहे हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी इवोल्यूशन प्रोसेस में बहुत अचीव कर चुके हैं। सो इसीलिए आकाशिक जो है काफी प्रोपागेंडा भी है, एंड हीलिंग मोडालिटी भी काफी पब्लिसिटी हो रही है। राइट? आप किसी को भी बोल दो, आजकल मेंटल अवेयरनेस क्या है लोगों को समझ में आ रहा है। पहले कोरोना से पहले मेरे ख्याल से तो बहुत कम समझ में आता था, बट देन अभी इसके बाद तो काफी समझ आ रही है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, एंजाइटी है तो क्यों है, व्हाट इज एंजाइटी? राइट? सो अगेन, व्हाट इज आकाशिक? देयर आर मेनी मेनी डेफिनेशंस टू इट, बट प्रॉपर कोई बुक नहीं है इसके ऊपर। इट्स अ डाउनलोड प्रोडक्ट। अब जब डाउनलोड प्रोडक्ट बोलते हैं तो हमारा हायर सेल्फ हमें डाउनलोड देता है। ये जितने भी मैं इधर क्लासेस पढ़ा रही हूँ, इसका कोई बुक नहीं है, इसका कोई रेफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरे को मेरे मेडिटेशन में डाउनलोड हुआ है,
तो मैं आप लोगों को आगे बढ़ा, बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, सो आई थॉट, मैं हमेशा एक रिसर्च करती थी। फर्स्ट मैंने अपनी जर्नी शुरू की फ्रॉम रेकी, देन आर्ट ऑफ लिविंग फर्स्ट, देन रेकी, देन प्राणिक हीलिंग, देन थीटा, ऐसे करते 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 बहुत सारे मोडालिटी सीख लिए। बट अल्टीमेटली द गोल वॉज कि मुझे मेरा हेल्थ ठीक करना है, बिकॉज आफ्टर माई प्रेगनेंसी मेरे को एक काइंड ऑफ लाश की तरह हो गए थे, राइट, क्योंकि कोमा इज अ लाश ओनली, राइट। तो उस हिसाब से वहां से जो आज का जर्नी है, दैट इज ऑल because my higher self want me to live and to distribute the energy, right? ये सेकेंड जन्म बोलते हैं। जब आप सबका कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा जहां पे आप लोग बोल सकते हो कि ये मेरा दूसरा जन्म है। जब ऐसी चीज आती है कि आप दूसरे जन्म में भी जिंदा हो, वहां पे आपका स्क्रिप्ट चेंज हो जाता है। और वो हम भी करते हैं। मैं ये क्यों बोलूं कि हम नहीं करते हैं, हम भी करते हैं, हमारे मंजूरी से ही होती है, बट वो हमारे माइंड में रजिस्टर नहीं होता। हमारा हायर सेल्फ में इतना पावर है कि हमारा कर्मा को चेंज करेगा, राइट। बट अब जब चेंज हुआ तो ये लाइन जब मिला, हीलिंग मोडालिटी विच इज वेरी वेरी पावरफुल एंड एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का अपना प्रेशर है, दैट्स टोटली डिफरेंट। एंड यू कांट से कि वो लोग इवॉल्व नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल में आए हुए हैं वही इवॉल्व है। नो, यू कांट जज एनीबडी। कोई मतलब जो पीता है वो सोल भी इवॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने पिछले जन्म में इतने जाप किए हो, इतना सिद्धि किया हो कि अब उसका सोल ने चूज किया, ये जो जन्म है ना मेरा, मैं रेस्ट करूंगा, मैं सिर्फ मदिरा पान का एंजॉय करूंगा, मैं अगले जन्म में देख लूंगा जो मेरे को दीक्षा मिली उसको कैसे यूज कर। सो दैट सोल में टेक अ ब्रेक, राइट। बट ये सब इतना हाई लेवल की समझ है जो हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आता, विच इज ओके, विच इज फाइन, बिकॉज हम लोग सबको ठीक करने में लगे रहते हैं, सबको सीधा करने में लगे रहते हैं। बट अल्टीमेटली उसका सोल पर्पस क्या है वो आपको आकाशिक में मिलेगा, करेक्ट। एंड दिस क्लास इज ऑल अबाउट हाउ टू चेंज योर see there are 9 planets, correct? 9 planets में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन से हो सकते हैं? नॉर्मली सबका प्लेसमेंट अलग होता है। कभी कभार जुपिटर अगर गलत प्लेस हुआ हो, जो सबसे अच्छा प्लैनेट माना जाता है, वो भी मतलब कुछ भी कर सकता है। सो कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो खराब है या जो बहुत अच्छा है। Everything is depends upon the placement in our horoscope, right? Everybody agrees to this because बहुत लोगों का कैमरा बंद है, so which is not good, right? अगर इतना ही कैमरा बंद हो तो फिर मेरे मतलब मुझे नहीं, मैं क्या वॉल में देख के बात करना मेरे को नहीं पसंद। यू ऑल नो दैट मेरे को थोड़ा बात करना पसंद। Agreed. सो प्लैनेट्स के बारे में कितने लोग क्या जानते हैं एंड व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट प्लैनेट्स? आपके हिसाब से प्लैनेट्स क्या है? कोई बता सकता है मुझे? कोई भी? Planets actually ये इनकी प्लेसमेंट है, दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू आवर कर्मास, करेक्ट, प्रीवियस लाइफ। वो उस हिसाब से बैठते हैं और उस हिसाब से हमारे एनर्जी फील्ड को अफेक्ट करते हैं। दे अफेक्ट आवर चक्रास, दे अफेक्ट आवर थॉट्स एक्सेट्रा। एंड लाइक कोई प्लेनेट अच्छा या बुरा नहीं होता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो किस प्लेसमेंट में कैसे बैठे में उस हिसाब से वो अच्छा और बुरा हो जाता है। जैसे एनर्जी कोई अच्छी बुरी नहीं होती, वो उसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। लाइक जस्ट अगर ये बिजली जो घर पे आती है वो लाइट भी देती है, उसको हाथ लग जाता है, करंट भी लग जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल उस हिसाब से उसका करेक्ट, वो है। करेक्ट, करेक्ट। सो सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो थोड़ा कम पसंद होगा, राइट? उससे थोड़ा स्ट्रगलिंग ज्यादा होगा या चैलेंज ज्यादा होगा।
तो वो हो सकता है कोई डेबिलिटेट प्लैनेट हो हमारे पत्री में, करेक्ट। कोई हो सकता है जो बहुत हम उसको देखते ही हमारा एनर्जी फील्ड वाह वाह हो जाता, मतलब एनर्जी बढ़ जाता है। ऐसे जो एनर्जी को बढ़ाता है वो प्लैनेट है एग्जॉल्टेड प्लैनेट। बट बिलीव मी, मैंने ऐसे पत्रियां भी देखी है जहां पे एग्जॉल्टेड का एक्चुअल इंग्लिश मीनिंग इज वेरी हैप्पी, राइट। एक प्लैनेट है जो सबसे हैप्पीएस्ट पोजीशन में आपके पत्री में बैठा हुआ है, अगर वो भी वो चीज नहीं दे पा रहा है जो सबसे खुश होके बैठा है, तो ऐसा क्या है? क्योंकि हमारे पास ऐसा है, मतलब ऐसी कितनी पत्रियां देख ली अभी, कम से कम अभी जो क्लोजेस्ट मैंने पत्री देखी थी वहां पे 4 एग्जॉल्टेड प्लैनेट है, फिर भी वो बंदा मेरे पास क्यों आया? क्योंकि हमारे पास तो ऑब्वियसली कैसे लोग आते हैं, यू ऑल नो, प्रोफेशन ही हुई है, करेक्ट। सो क्यों आते हैं ऐसे, कोई बता सकता है? क्योंकि उस हैप्पी वाले जो प्लेनेट है उस पर भी किसी किसी और प्लेनेट की कुदृष्टि है जो दिक्कत कर रहा है, उसको उसको अपना फुल उस पर करना नहीं दे रहा। ठीक है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, करेक्ट, प्रॉपर हो गाइडेंस सकता के है, लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए। प्रॉपर गाइडेंस के लिए। बट मेरा सवाल ये है, जब 4 एग्जॉल्टेड प्लैनेट उसके पत्री में है, मतलब 4 प्लैनेट है जो बहुत खुश है, फिर भी उन लोगों को ऐसा क्या प्रॉब्लम्स होता है जो हमारे हीलर्स या एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना होता है? द प्लैनेट्स हैप्पी हो सकते हैं, बट इन्होंने फ्री विल से जो अपना पाथ चूज किया होगा, दैट विल बी काइंड ऑफ नॉट अलाइनिंग विद दोस प्लैनेट्स, और उसकी वजह से डिफिकल्टी आ जाती है। तो दो Correct. एवरीथिंग इज राइट, बट फ्री विल से जो चूज करते, इट्स लाइक अ गेम, राइट। चार चार Correct. डोर्स है, तो यू Correct. चूज अ डिफरेंट डोर जहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़े अलग है। तो दे ट्राई टू कम एंड रिजॉल्व दोस इश्यूज, मे बी। आई एम जस्ट होपिंग, आई एम थिंकिंग। Yes, yes, and those free will creates your karmic cycle. भगवान ने ये नहीं बोला है कि आपने, चलो पिछले जन्म में आप एक टेररिस्ट थे, इतने लोगों को मारा है, दैट डजंट मीन कि आपको पूरा पैकेज इसी जन्म में भोगना है। हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा इतना करना। तो हमें क्या बोला है, चलो तू ले ले थोड़ा सा टेररिस्ट वाला कर्मा, उसके बाद मैं तेरे को 25% फ्री विल देता हूं। मतलब अपने इच्छा अनुसार यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी, राइट। सो उसको तू ले ले और फिर जी ले। अब उस 25% में, एज करेक्टली सेड बाय वीना, उसमें से भी हमने ऐसा कर्मा चूज किया जो वो जो 4 प्लैनेट्स है उसके ऊपर हमने ब्लैक एनर्जी लगा दी। ऑब्वियसली सी, ऐसा हो सकता है कि हमारे घर में इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, बट आप सारे अच्छे लोगों का बेनिफिट ले सकते हो? ले सकते हो क्या सारे अच्छे लोगों का हेल्प ले सकते हो सबका? नहीं ना, फिर भी तो हम अपना ही काम करेंगे, राइट। सो फ्री विल को लेके हमने कितना काम किया, तब जाके वो जो 4 एग्जॉल्टेड प्लैनेट है उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया हमको, उस पे सारी कहानी हमारी टिकती है। अगर आपने फिर से वही चूज किया, पहले भी टेररिस्ट है, अभी भी टेररिस्ट नहीं, बट जिंदगी ऐसे चूज की कि गंदे वर्ड्स, टॉन्ट करना, राइट, किसी को हेल्प नहीं करना, अगेंस्ट ऑल द कैरेक्टर्स, कोई भी चीज अच्छा नहीं किया, तो वो जो एग्जॉल्टेड प्लैनेट है वो डिम हो जाता है, उसकी वो लाइट नहीं रहती है, उसकी वो शक्ति नहीं रहती है कि वो आपको हेल्प करे। सो एवरीथिंग कम्स बैक टू अगेन योर एक्शन, योर रिएक्शन, योर थॉट्स, right? Karma is also of different kinds. Thought is also a karma, action is also a karma, how you react is also a karma. So each karmic is separate. So जब हम आकाशिक में जाते हैं, when we meet all the 9 planets, मैं एक एक planets की जब healing कराती हूँ, so सबका energy field will differ. For example, अगर मैं ये बोलूं Saturn, राहु, केतु,
ये 3 प्लैनेट है जो एक्चुअली में कार्मिक प्लैनेट, राइट? क्योंकि राहु आपको बर्थ बार बार देता है, बार बार आना है तेरे को इधर। जब मरोगे तो कोई ना कोई डिजायर रख के मरोगे ना, हाय मेरे बेटे को मैं अकेला छोड़ के जा रहा हूँ, तो डिजायर हो गया। अगले जन्म आने के लिए आपने एक ओपन पाथ रख दिया कि आपको अगले जन्म में आना है, सपोजिंग आपके बेटे के लिए तो आना ही है, राइट? सो दैट इज राहु, जब कोई डिजायर क्रिएट करता है। विदाउट डिजायर तो हम लोग वैसे भी जीते नहीं है, भगवान के पास भी जाते हैं तो ये दे दो वो दे दो, यही करते रहते हैं, राइट? सो डिजायर इज राहु। एंड ये है कि जब मैं मेरे टीचर पढ़ा रहे थे तो कभी कभी टीचर ये भी बोलते थे कि जो 12th हाउस में अगर कोई केतु किसी का आ गया, दैट मीन्स ये उसका आखिरी जन्म है, मतलब उसका जो कार्मिक बैलेंस है वो 0 हो गया। सो कर्मा में केतु इज व्हाट, मोक्ष का कारक है, राइट? वहां जब आप केतु से करते हो बहुत सफरिंग बहुत होती है, बहुत सफरिंग होती है। सो जब आकाशिक में चेक करते हैं कि केतु रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, केतु रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, एनी काइंड ऑफ डिसीजेस, केतु बीमारी का कारक है। क्यों? क्योंकि मोक्ष इज द अल्टीमेट अल्टीमेट होम फॉर अस, राइट? एक डेस्टिनेशन मोक्ष। तो डेस्टिनेशन तक जाने तक आपका जो ऑरा क्लेंजिंग पूरा होता है वो सारा केतु कराता है। अगर किसी जन्म में आपको बीमारी आनी है तो इस जन्म में आएगी, किसी जन्म में आपको रोना था तो इस जन्म में रोओगे। सो ये सारा जो अपना जर्नी है दैट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ केतु दशा, राइट? तो ऐसे किसी का अलग, इसमें पत्री देखने की जरूरत नहीं है आकाशिक में, और आपको किसी भी तरीके का नॉलेज होने की भी जरूरत नहीं। एज अ हीलर, व्हेन यू फील which planet is heavy for you, which planet is light for you, जब हम आगे जाएंगे, जैसे आज मैंने टॉपिक चुना था मून का। मून इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आवर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हम प्रेडिक्शन भी मून के हिसाब से करते हैं, एवरीथिंग सराउंड्स हमारे लूनर कैलेंडर के हिसाब से, राइट? So why moon is so important? Why moon is so important? आजकल मरकरी रेट्रोग्रेड, मरकरी रेट्रोग्रेड है, ओके, बट माइंड इतना chaos क्यों कर रहा है? किस किस के लाइफ में अभी बहुत सारे फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस, मिसकम्युनिकेशन, ऐसे सब हो रहा है? कितने लोगों के साथ हो रहा है अभी रिसेंटली? हैंड्स रेज करना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कितने लोगों के लाइफ में ओके 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 एंड पैसे दिए, पैसे वापस नहीं आए, बिजनेस ठप चल रहा है, बिजनेस का पता नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। एंड ये सब जो मंथन हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा मक्खन निकल के आएगा जो आपको चाहिए था। बट ये जो चर्निंग हो रही है, दिस इज मरकरी रेट्रोग्रेड। कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, स्पेशली मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, तो बहुत चर्निंग होती है, जो हो रही है आज। एंड उसमें अगर ऑन चेरी ऑन टॉप मून ठीक से नहीं बैठा है, मतलब आपका मन का कारक अगर डेबिलिटेटेड है या उसकी शक्ति आपके मन तक नहीं जा रही है, तो आप कुछ भी डिसीजन लो, इट विल नॉट वर्क। आप डाउट में ही रहोगे, फियर में ही रहोगे, एंजाइटी विल बी एट द पीक, राइट? सो कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जो पूरे 365 डेज का जो चार्ट है हमारा प्लैनेटरी पोजीशन, वो फिक्स्ड है। हाँ, शनि वक्री होगा तो होगा, जून में वो जरूर होता है वक्री। कुछ कुछ प्लैनेट्स का पोजीशन है जो फिक्स्ड है, रेट्रोग्रेड तो होना ही है उसको। अभी जुपिटर इस टाइम में रेट्रोग्रेड होगा होगा, बट जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो एंड में क्या देता है, वहां तक अगर हमें बचाना है तो आकाशिक हीलिंग जरूर कर लेना। इसमें कोई जेम की जरूरत नहीं है,
no gem, right? No crystals. Physically ऐसा कुछ नहीं चाहिए. Yes, we will be doing gem healing. We will be doing, I'm not doing any prediction here, but then yes, जैसे जैसे हम पढ़ते हुए जाएंगे मैं बात करूंगी आपसे कि क्या चीज क्या है. मून एंड सैटर्न इज अ वेरी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है. वी विल गेट इनटू इट लेटर. सो जेम्स का एंड क्रिस्टल का एंड कलर्स का, इन सब की हीलिंग करके अपना कर्मा थोड़ा स्लो करेंगे. मून का आज मैं आप लोगों को बताती हूँ वन टाइप ऑफ हीलिंग. ओके, मून क्या है? चंद्रमा हमारे माइंड का कारक. बिकॉज पहले हम सोचते हैं, फिर हम और सोचते हैं, फिर हम और सोचते हैं, फिर हम एक्शन करते हैं, फिर रिएक्शन करते हैं. ट्रू, अग्रीड? या कभी कभी होता है हम सोचते ही नहीं, हम कर देते हैं, वो एक अलग बात है क्योंकि चंद्रमा चंचल है. सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट इज मून. 2.5 दिन में वो एक घर कंप्लीट कर देता है. वही शनि 2.5 साल में कंप्लीट करता है. तो कितना वेरिएशन है देखो, राइट? तो मून इतना जल्दी भागता है. क्यों? क्योंकि मन इतना जल्दी भागता है, राइट? हम एक डिसीजन लेते हैं, बट कुछ कुछ डिसीजन है कि हम ले लेते हैं, हमें पता है पक्का. जैसे विवीना ने बोला मैं हीलिंग कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, बट स्टिल आई हैव डाउट, विच इज फाइन. डाउट होता है हम लोगों को क्योंकि वही चंद्रमा है. हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं. सो मून किसको दर्शाता है? माँ को. अगर मून का पोजीशन ठीक ना हो आपके हॉरोस्कोप में, तो आपके और आपके मदर के साथ जो जर्नी है, या तो वो लॉन्ग नहीं होगा कि वो बहुत साल तक जिए, हम ऐश करें, उनका खाना खाए, यू नो, फुल ऑफ लव, नर्चरिंग. बिकॉज मून इज अगेन नर्चरिंग. मदर इज वाइटामिन टू अस, राइट? उनका रहना ऐसा है कि वो हमें नर्चर करती रहती. सो मून अगर ढंग से प्लेस ना हो तो वो नर्चरिंग कहीं ना कहीं कम हो जाता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है. आप लोग कितने लोगों को जानते हो कि मम्मी और बच्चों का रिलेशन ठीक नहीं है? जानते हो किसी को? माँ और बच्चों का रिलेशन ठीक नहीं है. कभी उनकी पत्री उठा के देख लेना, सिर्फ मून का देख लेना कि वो कैसा है, उसका प्लेसमेंट. जस्ट इंटरेस्टिंग, जो भी इधर एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ. सो लाइफस्टाइल को देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो किसका प्लैनेट क्या प्रॉब्लम है. नॉट नेसेसरी हमेशा हम पत्री उठा के ही देख के प्रेडिक्ट करें, राइट? किसी का लाइफस्टाइल देखो, अच्छा पापा के साथ इसका ठीक नहीं है, सन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, डैमेज्ड है, बार बार लाइफ में स्ट्रगल करता रहता है, प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है इसका, या करियर वाइज इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ब्राइट क्यों नहीं है इसका, डिजायर क्यों नहीं इसका फुलफिल हो रहा है. स्ट्रगल सबके लाइफ में है, दैट इज टोटली डिफरेंट, बट स्ट्रगल सबका अलग है. तो वो स्ट्रगल में भी आप प्लैनेट्स को जोड़ सकते हो. व्हेन इट कम्स टू मून, मून गिव्स यू all kinds of liquid business, right? Liquidity, milk, dairy, सारे dairy farms वाले सब milk, ये सब moon है, because it nurtures you also, right? जब आप दूध पीते हो तो आपका बॉडी में नर्चरिंग आता है. So अगर किसी का ऐसे बिजनेस ठप हो तो आप उसकी आकाशिक कंसल्टेशन लेके बोल सकते हो, लेट मी डू वन कंसल्टेशन फॉर यू, एंड उसका मून हीलिंग कर सकते हो. यू कैन टेक हीलिंग ऑफ प्लैनेट्स आफ्टर दिस क्लास, राइट? अगर सपोजिंग कोई आता है आपके कंसल्टेशन, अभी तक कितने लोगों ने कंसल्टेशन लेना शुरू कर दिया यहाँ पे मेरे से जुड़ने के बाद? हैंड रेज करना.
श्रीनी, ओके। क्या प्रमोद जी, आपने भी शुरू कर दिया या नहीं? आपने तो कर दिया, मेरे को जहां तक पता है। अश्विनी, कर रहे हो ना? हाँ। सो जो भी मैं सिखा रही हूँ, प्लीज उससे लक्ष्मी को आने का मौका दीजिए। लक्ष्मी को मत बोलना मुझे नहीं चाहिए। मेरी एक क्लाइंट है, वो मेरे से बात ही ऐसी करती है, वो इस्कॉन वाली है। मैम मैं लक्ष्मी भेज रही हूँ। मेरे को पहले समझ में नहीं आता था ये क्या बोल रही है, फिर मेरे को ओके इतने प्यार से बुला रही है उसको। मैम मेरा लक्ष्मी ना कहीं अटका हुआ है आने, ऐसी बात करती है वो। मतलब कितना अच्छा है ना साइकी कि लक्ष्मी। ओ हम यहाँ पे, मैं अष्टलक्ष्मी सिखाने वाली हूँ आकाशिक में, और आप अष्टलक्ष्मी सीखने के बाद भी ये बोलोगे मुझे नहीं चाहिए पैसा, तो फिर तो ये कोर्स ही वेस्ट है आपके लिए, राइट? क्यों? क्योंकि आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, मुझे नहीं चाहिए मेटीरियलिस्टिक, सो देन इट्स नॉट फॉर यू, बिकॉज वी ऑल वांट मेटीरियलिस्टिक आल्सो, राइट? So everybody please close your eyes, take a deep breath, inhale and exhale, inhale and exhale. Visualize ball of light which is full of brilliant light आपके दोनों पांव के नीचे। Inhale that brilliant light, पूरे दिन, पूरे जो डे का जो स्ट्रेस है उसको रिलीज कीजिए। रिलीज, रिलीज, रिलीज। And if you have any kind of DNA issue है, ask that energy to release, 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 and उस बॉल को फील कीजिए, वो बॉल हेवी हो रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा, इट इज बिकमिंग हेवी, heavy, heavy, heavy. Now leave that ball into Mother Earth. Visualize or feel the Mooladhara chakra, which is located in the base of the spine, and chant Om Chandraye Namaha. Om. Feel the energy of Chandrama. चंद्रमा जो मन का कारक है, अगर किसी को फाइनेंशियल, पैसे रिलेटेड इशू हो, उस एनर्जी को इस बॉल के अंदर डाल दीजिए। Focus on the sex chakra, which is Swadhisthana chakra, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बीच में है। चैंट ओम ईशाकारायै नमः। ओम। Release all the heaviness. सेक्स चक्र में मेजरली अब्यूजेस स्टोर होते हैं,
बहुत सारे जन्म के अब्यूज, बिना आपके इजाजत के टच किया, बिना आपके इजाजत के जो भी किया, वो सारे सेक्सुअल चक्र में स्टोर होते हैं। रिलीज, रिलीज दोज अब्यूजेस, जिस वजह से क्रिएटिवनेस डल हो जाता। विजुअलाइज या फील द palpitation in your Mooladhara, that is base of the spine, and in your sex chakra. Focus on the mid of the rib cage, that is solar plexus, and chant Om Satpataye Namaha. Om. ये सब चंद्रमा का नाम है, अलग अलग नामावली। So release anger. एंगर इस जन्म का, पास्ट जन्म का। रिलीज, रिलीज, रिलीज। Feel the lightness in your stomach area. Focus on the heart chakra. Om Viraye Namaha. Om. Feel the release. रिलीज करो सारे हेवीनेस को आपके और आके, एंड फॉरगिव एवरीबॉडी। इफ आई हैव हर्ट यू इन एनी लाइफ टाइम, प्लीज फॉरगिव मी, एंड आई ऑल्सो फॉरगिव यू फॉर ऑल द हर्ट एंड पेन अगर आपने मुझे कुछ दिया है। डोंट कैरी हेवीनेस इन योर हार्ट। रिलीज on the throat area and chant Om Vishveshaye Namaha. Om. थ्रोट, जहां सबसे ज्यादा चोकिंग होती है और एक काइंड ऑफ हम बंद जाते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं जो करना चाहिए। रिलीज ऑल दोस चोक, मतलब जो चोक हुआ है वो सारी एनर्जीज को रिलीज कीजिए। या किसी जन्म में आपका हमारा मृत्यु चोक होके हुआ है तो रिलीज ऑल द फियर ऑफ डेथ फ्रॉम द थ्रोट। Claustrophobic, release that feeling. Focus on the Agnya chakra. Chant Anantaye Namaha. Om. Wherever you feel intuition की कमी है, wherever you feel disconnect from the divine, focus on your Agnya chakra. Increase the light. जैसे मून का लाइट है, उस लाइट को बोलो आज्ञा चक्र को इंक्रीज करें, बड़ा करें, एक्टिवेट करें, सो दैट एनर्जी रीडिंग करें, साइकिक एबिलिटी बढ़े, विल पावर बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, डिसीजन ठीक से ले। किसी की रीडिंग कर रहे हो बिल्कुल क्लियरली ले, नो डाउट।
And focus on the crown. Chant Om Namah Shivaya Om. शिव जी ने चंद्रमा को अपने सर पे जगह दी है. Visualize that Chandram. Feel the energy of Shiva. And ask the Shiva to release fear. Death का fear, बात करने का fear, घर से बाहर निकलने का fear, business चलाने का fear, पैसा लेने का fear, किसी भी तरीके का fear. Release. मैं कैसे क्या करूंगा या करूंगी लाइफ में, उसका fear. It's all about fear. Release all kinds of fear. Ask the Shiva energy. उनके जटा से चंद्रमा का white light आपके क्राउन में पूरा भरिए. Fill your entire crown with this moonlight. Energize our brain. Energize the pineal gland. Slowly, Agnya Chakra, brighten your Agnya Chakra. Energize the pituitary gland. सारे hormones को सही करें. Moon controls all the hormones in our body. All the psychic ability in our body. Inhale and fill the entire Agnya Chakra with moon light. Inhale and fill the entire throat with moonlight. जिसको thyroid, parathyroid हो, वो भी cleanse हो जाए. Inhale the divine moonlight and fill the heart chakra with love. Inhale the divine moonlight and fill the solar plexus with love. I center. I trust myself. Inhale the divine moonlight and fill the Swadhisthana chakra and Muladhara chakra with moonlight. And visualize हर जगह से पैसे की waterfall. Moon gives you financial stability. Moon gives you everything. जो भी lack है लाइफ में, वो सब मांग लो मून से, चंद्रमा. एंड अगर मून debilitated हो या कुछ हो तो ब्लैक मैजिक भी हो सकता है. We will cover that in our next class. And release the moonlight. Grounding कीजिए. Energy field बनाइए अपना. मूलाधार से नीचे लेके जाइए लाइट को, energy light, and ground yourself. Whenever you are ready, you can slowly open your eyes with a big smile. If you want to share your experience, you can open your mic and speak. I think I can share my experience. So, जैसे like the first time we did the white healing, right?
सो जैसे हम लोग ऐसे ऊपर जा रहे थे ना, तो हार्ट व्हेन इट केम, माय टीथ स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग। पता नहीं अंदर से कट 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 कुछ होने लगा, इट वाज नॉट इन माय कंट्रोल। एंड देन व्हेन वी वेंट टिल द टॉप, इट वाज लाइक कंप्लीटली इंडिगो, ऐसे बनता ही जा रहा था, बनता ही जा रहा था। दो द मून लाइट वॉज वाइट, बट ऐसे वो इंडिगो इंडिगो बनता ही जा रहा था। एंड माई हैंड्स वे लिफ्टिंग ऑन इट्स ओन। मैं नहीं लिफ्ट कर रही थी, बट वो अपने आप ऊपर हो रहा था। एंड फिर मैं बार बार उसको नीचे कर रही थी। सो दैट्स हाउ इट वाज हैपनिंग फॉर मी। Yeah. So this was your astral travel, by the way. Oh, okay. Yeah. Okay, okay, that is what it is. Okay. Yeah, that is what it is, and you can't explain this experience to anybody. Yes. So वही अपने आप ऐसे ऊपर हो रहा है, फिर मैं इसको नीचे कर रही हूँ, हो रहा है ऊपर, मैं इसको Yeah. नीचे कर रही हूँ बार बार। Amazing. Good. Thank you. Yes, anybody else felt something really nice, unusual? Share करना है? मैम व्हाट इज एस्ट्रल ट्रैवल? मेरे को पहले एक्सपीरियंस शेयर करो। मैम मुझे तो मेरे पैर में बहुत ऐसा खिंचाव हो रहा था। मैम वॉल खिंचाव हो रहा था। हाँ बहुत बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था अभी मैं आंखें खोल दूं, इतना पैर मेरे खींचने से लग रहे थे पूरा ऐसा। अरे हम पढ़ा तो है, थर्ड क्लास में था कि फोर्थ क्लास में था, कि मून का जब फेसेस होते हैं तो जो सी का जो वेव्स है वो लंबा एंड छोटा हो जाता है, पता है? ग्रेविटेशनल टाइड्स होते हैं। टाइड्स। हाँ, कोई तो टीचर होगा यहाँ पे फोर्थ क्लास पूर्णिमा का। अमावस्या। हाँ, लो टाइड्स और हाई टाइड्स। यस, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स, करेक्ट। तो ये सबने आज महसूस किया है, राइट? अमावस्या वही वाले दिन गीतांजलि, पूर्णिमा वाले दिन होता है। नहीं मतलब नहीं, नहीं समझ फ्राइडे रही। सैटरडे एनर्जी इज मुझे वेरी पैर हाई। में अभी भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे 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 हो रहा है मुझे। गुड गुड। राइट हैंड में पेन हो रहा है, हेवीनेस। तुम क्या बोल रही हो लिशा? मैम राइट हैंड में हो रहा है तुम्हारा? ठीक है। सो सबने ग्रेविटेशनल पुल आज क्या है वो महसूस किया, राइट? किसी ने पैसा देखा? यस अरुणा। हेलो मैम। हाय। मैम मैंने पैसा भी देखा और अपनी मम्मा को भी देखा। मम्मा मतलब को हर भी देखा, चक्र पे, बहुत, हाँ, हर बहुत चक्र पे बढ़िया, देखा। वेरी गुड, वेरी नाइस। किसी ने तो भी हैंड रेज किया। अरुणा, हाँ Where is मैम। अरुणा? हाँ बताइए। मैम मुझे ताड़ाई पे खींचा हुआ आया और बहुत नींद आया जैसा लग रहा है मैम। क्या बोलते, उबासी आ रहा है बस ज्यादा। ही आ रहा है। हाँ काफी एनर्जी लगी है आपकी, इसलिए यू फील टायर्ड, यू माइट फील टायर्ड ऑल्सो। थोड़ा ना हमसे थोड़ा व्हाट यू कॉल, ये जो मेडिटेशंस है स्पेशली आकाशिक या जो भी मैं कराती हूँ यहाँ पे, इट टेक्स पावर, आपका पावर लेता है आकाशिक तक जाने के लिए। धरती से जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे हम दूर जाते हैं, तो ये पूरा हम अपना पावर लगाते हैं। दिस इज एस्ट्रल ट्रैवल। जब हम हर रात को सोते हैं और हम हमारी सूक्ष्म बॉडी जब चलती है, तब आपको याद होता है, अच्छा आज मैंने ड्रीम में ये देखा, अच्छा ये हुआ वो हुआ। कभी कभार तो आप किसी के घर पे भी चले जाते हो ड्रीम में, राइट? किसी से मिलके भी आ जाते हो, लड़ाई भी करके आ जाते हो, प्यार भी करके आ जाते हो, सब इमोशंस साथ में ही चलते हैं हर दिन। मुझे याद है, कोई तो था, यही था, एक किस्म था कि नाइटमेयर्स भी आते थे उसको काफी, राइट? सो मतलब उसके सूक्ष्म बॉडी को ये पता है कि अब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ ये होगा। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ
दिस इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, बट सूक्ष्म बॉडी हमारा हमेशा रात को निकल जाता है घूमने के लिए, उसके बाद उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। कभी कभी आपने सुना है किसी बड़े गुरुओं से, हम तो हर रोज मरते हैं, हर रात को मरते हैं, फिर सुबह जिंदा होते हैं। तो जब मरते हो तो सूक्ष्म बॉडी निकलता है, दैट इज एस्ट्रल ट्रैवल, एंड देन वापस सुबह आ जाते हो, क्योंकि आपका कॉर्ड कनेक्ट होता है आपकी बॉडी से। अगर ब्लैक मैजिक हुआ हो तो उसमें प्रॉब्लम है, फिर आप वापस आना मुश्किल है। What is Shukshma? सूक्ष्म है सटल एनर्जी, तब तक सटल एनर्जी, देयर आर मेनी सटल एनर्जीज, राइट। अगर मान लीजिए रात में सपने नहीं आ रहे, तभी सूक्ष्म शरीर जाता है ऊपर, सपने नहीं आ रहे। सपने नहीं आ रहे फिर भी आप सो रहे हो ना। हाँ जी, हाँ जी। सपना क्या है, आपका ब्रेन का वो 3G है, 5G है, क्या पावर है कि आपने उसको रजिस्टर किया। एक एक्सपीरियंस रजिस्टर करना, जैसे आज मैंने 1.5 घंटे का क्लास लिया, इसमें से कितनी बातें हमारे ब्रेन में रजिस्टर हुआ, वो हमारे ब्रेन पावर के ऊपर निर्भर करता है। रोज रात को मरते हो, रोज सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है, बट ब्रेन में कितना रजिस्टर हुआ, उसका जो ट्रैवल है, नॉट नेसेसरी वो सारा ट्रैवल आपको बताएगा, बहुत सीक्रेटिव ट्रैवल्स भी होते हैं, क्योंकि वो सोल ट्रैवलिंग होती है। अगर वो आपको याद नहीं है, मतलब आपको अपना ब्रेन पावर बढ़ाना पड़ेगा। और नॉट नेसेसरी सारे एक्सपीरियंसेस हमें याद भी रहने चाहिए, ऐसा भी कोई मारामारी नहीं, बट कुछ कुछ चीजें हैं, यू नो, दीज आर नोन एज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कभी कभार। वाई? अच्छा, आज रात को एक होमवर्क देती हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल invoke to your higher self before sleeping and say, मुझे spiritual experiences कराना है, और वो मेरे माइंड में रजिस्टर होना चाहिए। पता चला कि उसने करा दिया, आपको रजिस्टर ही नहीं हुआ, एंड देन यू लेट मी नो कि किस किस का क्या क्या एक्सपीरियंसेस था। एंड हम लोग क्या करते हैं, हम एज अ हीलर हम लोग ये इन्वोक करके सोते हैं कि मैं अभी सो रही हूँ, तो मेरा जो ये सूक्ष्म बॉडी है जाके किसी को हील करके आ जाए। हम रात में भी हीलिंग देते हैं, क्योंकि वो हमारा पाथ है हीलिंग देना, चाहे हम जगे हो या सो रहे हो, राइट। सो कितने ऐसे अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो इनविजिबल हेल्पर्स करके बुक है लीड बीटर का, उसमें काफी चीजें ऐसी हैं कि कहीं आग लगी है बट कुछ एंजल्स आके उसको बचा लेते हैं, पता भी नहीं चलता, दिखाई भी नहीं देता किसने बचाया। दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स। आप सो भी रहे हो, मैं इधर पढ़ा भी रही हूँ, तब भी आई कैन गो एंड हेल्प इफ somebody is in need, especially those people who are always connected with us. We all have the power, बट यस आप ब्रेन को कैसे ट्रेन करते हो उसमें। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी है, जयश्री ने भी आज बोला कि जब मैं आपका मेडिटेशन देख रही, क्या बोला जयश्री तूने, मैं भूल गई, सॉरी। तो Yes, ऐसा लग रहा प्रमिला Right. हियर, मैंने 1-2 बार ये एक्सपीरियंस किया है। हाँ जयश्री बोलो। इसमें जब लाइन गेट पोर्टल पे हम जा रहे थे तो हम हाँ दोनों लाइन के ऊपर बैठे। हाँ, सो वो बहुत बड़ी चीज है जो देखना है, मतलब और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, और लोगों को हील करना है, और लोगों को ये स्प्रेड करना है वर्ड, राइट। सो व्हेन योर सोल इवॉल्व्स, ये इनिशिएशन होता है सोल का कि इनविजिबल बीइंग्स आपको कैसे इनिशिएशन दे। इनिशिएशन इज दीक्षा। एक होता है फिजिकल बॉडी में दीक्षा देना, आपके गुरु है, अच्छा आज काली का मंत्र ले लो, चलो ये दीक्षा हो। एक होता है स्पिरिचुअली दीक्षा देना, जब आप सो रहे हो तब भी दीक्षा मिल सकता है, दैट डजंट मीन कि कोई गुरु नहीं है,
गुरु है तभी हम लोग बैठे हैं, हायर सेल्फ है हमारा, वो गुरु है, उसके मुझे आगे भी बहुत बार गुरु है। मिला, बहुत बार मंत्रोपदेश हुआ है नींद में। है ना, हुआ है ना, चलो मैं झूठ नहीं बोल रही। होता है, पता है, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ ऐसे मंत्र उपदेश मिलता है। किसी किसी को तो सोल का जर्नी पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे क्या होता है, बहुत अनगिनत तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं ये सब। जब सोल इवोल्यूशन होता है उस टाइम में हम लोग महसूस कर सकते हैं, और उसके बाद शायद भूल भी जाए, क्योंकि हमारा ब्रेन ना 2 GB नहीं है, 1 GB नहीं है। So ये जो आकाशिक या जो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। वहां तक थोड़ा रजिस्टर करना थोड़ा टाइम लगता है और कुछ नहीं। ओके, एनी क्वेश्चंस? शैल वी क्लोज द क्लास? Ma'am, I just wanted to मैम, ask one thing related to astral travel. Like, suppose we are doing some Devi sadhana and we are just asked हाँ Ma हाँ darshan dena. हाँ At the हाँ end of the हाँ sadhana, dream mein a line comes. Matlab, I have हाँ seen a proper line in front of me. हाँ And now in every Akashic या on and off meditation, एक line तो दिखता ही रहता है. कभी line के teeth दिख जाते हैं, कभी line face दिख जाता है. जब line is everywhere, so that means we have connected with our energy and we have astral traveled to that to her only हाँ when that line has appeared. हाँ। देखो, माँ दर्शन देगी उससे पहले आपको वाहन का दर्शन मिला। अगर आपको Okay. कभी नोट करना, सारे हिंदू गॉड और गॉडेस के पीछे एक एनिमल स्पिरिट जरूर है, Hmm. राइट? वही मैसेंजर है एक्चुअली। सो आप मैसेज अपना दे सकते हो उसके थ्रू माँ को, माँ भी दर्शन देगी, Okay. वो भी देती And है। like in मैंने Akashic देखा था पिछले lifetime I was a strong devotee of Krishna, भगवान हम्म, कृष्ण. एंड हम्म। मुझे हमेशा स्पिरिट एनिमल ऐसे लास्ट क्लासेस में ईगल दिखता था. आई नेवर अंडरस्टूड. मुझे आकाशिक में सडनली समझ में आया कि इट इज गरुड़ ओनली. वो ही वाहन है ओ वाओ, विष्णु जी के. सो दैट मीन्स दैट आई एम कनेक्टेड टू हिम. दैट्स व्हाई आई एम सीइंग दैट ईगल एवरी टाइम. ईगल नहीं नहीं, एंजल. बट यस आई वाज गरुड़ तो ऑलवेज वल्चर, यस। सीइंग. गरुड़ तो वल्चर होता है, ईगल नहीं होता मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, ईगल फेस है ईगल प्रॉपर. अलग है, बीक. गरुड़ का एक नाम है। वल्चर से नहीं नहीं, वल्चर नहीं है, अरे नाम है। काइट मैम काइट दैट वो ईगल फेस एंड काइट, काइट ह्यूमन बोलते हैं, बॉडी काइट है. काइट काइट बोलते हैं। काइट. तो दैट मीन्स हम लोग पास्ट लाइफ से भी जो डेटीज के साथ कनेक्टेड है उनके स्पिरिट एनिमल्स हाँ, दे कंटिन्यू फॉलोइंग अस एंड वही आता है ना शिखा उनकी हमारे साथ, जो पिछले जन्म का आकाशिक. गाड़ी थोड़ी आता, अभी गाड़ी नहीं आता, पैसा नहीं आता, यही आता है जो पढ़ाई की है ना। पिछले जन्म में क्या थे हम, क्या पता, रईस थे या पॉपर थे, वो नहीं आएगा, बट जो पढ़ाई किया है वही आएगा। अगर आज मैं पढ़ा रही हूँ या आकाशिक के साथ अलाइन कर पा रही हूँ, दैट मीन्स कुछ तो पुण्य किया है पास्ट में जो इस जन्म में आया है, वरना नहीं कर पाते इसे। वरना मैं तो मैम फैशन जैसा डिजाइन। प्लैनेट्स डिस्कस करे थे ना, आई वाज इन दैट टाइम केतु महादशा. केतु like planet caused हाँ surgery also, and it made me हाँ, spiritual also, from a doctor to इट विल, suddenly spiritual. And akashic was the इट first विल। modality only ओ which I वाओ, learned. नाइस। सो सो दैट्स द रेमेडी। जो बोलते हैं ना केतु में ये बहा दो हाँ. वो बहा दो ये कर दो, सबसे बड़ा रेमेडी ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, शांत हो जाएगा प्लैनेट्स। क्योंकि डिवाइन एनर्जी से ज्यादा तो कहीं कुछ है ही नहीं। मैम मुझे शेयर करना है आज का एक्सपीरियंस. ओहो, बता, चल तू बता। मुझे हार्ट चक्रा पे जब हम आए ना तब गौ माता दिखी, और वो हाँ ऐसे मुझे चिपक के खड़ी हो गई. फिर बाद में थर्ड आई चक्रा पे जाने के बाद उसने चाइल्ड को बर्थ दिया हमारे हाँ गली के आसपास ही, मतलब वो एक दिखा. और उसके बाद ग्राउंडिंग जब किया तब पूरा ऐसे मूनलाइट अच्छे से नीचे गया, और फिर समुंदर की लहरें और जल तत्व दिखा था. उस पे मैं मेडिटेशन करने बैठी थी और ऊपर से फिर मूनलाइट आ रहा था.
तो ये गौ माता का तो ऐसे समझ में नहीं आया मुझे, थोड़ा अलग ही दिखा था। तू ऐसे बोलेगी तो मैं क्या करूं? बाकी कोई बोलेगा तो चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। मेरे पुराने स्टूडेंट्स तो मत बोलो नहीं समझ आया, पूछो आकाशिक में। राइट। गौ माता तो वैसे भी देखो, आज क्या किया हमने, मून का मेडिटेशन किया, तो पानी मून है। गौ गौ भी एक काइंड ऑफ नर्चरिंग है, उससे दूध आता है, वो भी मून है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मून ओनली। बहुत इमोशनल हीलिंग हुई है सबकी। इमोशनल हीलिंग अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है यार, हमारा दिल शांत रहेगा, माइंड शांत रहेगा। Dog Mama, she's saying, oh, the Kamdhenu. Kamdhenu gives money also and all that. Kamdhenu cow जो मेरी अरे हम हिंदू लोग तो गौ के सारे पीछे से टच करके ऐसे करके जाते हैं, पीछे लक्ष्मी है उसके, चाहे वो कामधेनु हो चाहे नॉर्मल गौ हो। गौ मीन्स हम लोग प्रे करते हैं, तभी तो हम लोग लड़ाई करते रहते हैं पाकिस्तान और इन सब केस में कि आप लोग क्या उसको काट के खा रहे हो, हम लोग तो प्रे करते हैं। राइट। मैम वो चंद्रमा का नेम्स देना जो अभी मेडिटेशन में बोले ना वो। टाइप गूगल चंद्रमा ओके। एंड क्या टाइप करोगी? चक्र नेम्स चंद्रमा मेडिटेशन। चक्र। अष्टोत्रम। अष्टोत्रम मतलब 108 नेम्स। नहीं अभी 108 क्रॉस चक्र तक ही बोले ना आप। मैं 108 नेम्स थोड़ी बोलूंगी यहाँ पे, पूरा आप पढ़ लो। फर्स्ट आप 7 लोग और 8। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक ये केयर। मेडिटेशन मैम, वन क्वेश्चन, ये मेडिटेशन हम लोग रोज कर सकते हैं ना, ये हाँ वीडियोस कर सकते हो। पर मुझे नहीं पता वीडियोस का कुछ है ना, जिसने एनरोल किया उसी को मिलेगा वीडियोस, वही रूल है ना अभी इंस्टीट्यूट का। ये यूट्यूब वगैरह में फ्री नहीं जाएगा। नहीं यूट्यूब पे नहीं मैम, एप्लीकेशन पे। हाँ एप्लीकेशन में जाए। वो तो हाँ पहले भी था रूल कि जो एनरोल करता है उसी को वीडियो मिलता है। हाँ। नहीं बट ये अभी भी ओपन क्लास चल रहा है ना, तो इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ हाँ। मैम और एक लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपको लास्ट टाइम आपको एक्सपीरियंस बताया ना, अभी मैं कितने बार आकाशिक के लिए ट्राई करती हूँ, मेरे को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता, कुछ भी नहीं, पूरा ब्लैंक। आप मेरे से मिले थे पहले? मेरे को तो याद ही नहीं है, पहले भी मिले हम। नहीं लास्ट क्लास में थी ना। हाँ लास्ट क्लास सॉरी। में थे ना, ये अगस्त का फर्स्ट सेशन, अगस्त का फर्स्ट सेशन हुआ था ना, लास्ट वाला, लास्ट 4 मंडे अगस्त को। अच्छा हाँ इससे पहले वाला मंडे। हाँ तो हाँ। अच्छा, एक ही हफ्ते में इधर मैं पूरा 365 चेंज कर दूंगा। वाह नहीं वाह मैम, वाह। चेंज नहीं, मुझे वाह कुछ वाह दीपक जी, ये एक्सपीरियंस सुनो नहीं हो रहा है। है। पूरा 2 ब्लैंक महीने ही से आ रहा है, लगे थोड़ा हुए भी हैं। नहीं आ रहा है कुछ। मैडम अगली संगीता क्लास कोई में बात मैडम नहीं, का जादू कोई करना बात चाहते हैं। अरे संगीता मैडम जादूगर है। हाँ नहीं वही। वो नहीं बोल रही हूँ मैम, मैं बोल रही हूँ कि मैं ट्राई करती हूँ ना आकाशिक का, तो थोड़ा एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ होता अभी है ना। तो मैंने नहीं आता। अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया क्लास आकाशिक का, अभी तो ज्ञान ही पेल रहे हैं हम लोग। मैडम मैम अगली मैं रिकॉर्डिंग देखती हूँ वो बेसिक वाले। मैडम वेडनेसडे से क्लास शुरू कर अच्छा। दिया जाएगा। हाँ हाँ। मैम आपने एक बुक का नाम बताया था, इनविजिबल हेल्पर्स, उनके ऑथर कौन है? TW लेड बीटर, LEADBEATER। मैम हाँ। हाय शांति कुशांगी। नमस्ते मैम, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। मैम ये जो मैम थे जिन्होंने अभी बोला ना उन्हें दिखता नहीं है, एक्चुअली गीतांजलि। मैं, हाँ अभी मैं सेकंड टाइम ज्वाइन कर रही हूँ आकाशिक, तो मुझे बस एक्सपीरियंस मैम के साथ शेयर करना है कि हाँ गीतांजलि मैम, एक्चुअली ना जब क्लासेस करते जा रहे थे ना, तो हम लोगों को मैम प्रैक्टिस भी कराते थे एक दूसरे के साथ, और काफी बार ऐसा भी हुआ था कि सबके अपने अलग अलग केसेस होते थे, और जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो मेरे को अपना एक बारी का याद है कि
एक मैम के साथ प्रैक्टिस करवाया था आपने, और मुझे कुछ कुछ मैसेजेस आए थे, मुझे नहीं पता था वो सही है नहीं है, पर मैम ने कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ आप बोलो तो सही। और जब वो हाँ बोला बिल्कुल। तो शायद बंधन मैम थे, मुझे याद नहीं है, तो उनका हाँ। कोई पर्सन था, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड रिलेटेड कुछ इशू आया था, उनका सन का कुछ इशू। तो मैं यही कह रही हूँ कि हमें ये नहीं पता कि हमें वो मैसेजेस कैसे आएंगे, विजुअल्स आएंगे, हमें वो आवाज आएगी, हमें वो मैसेजेस आएंगे, लेकिन हमें वो कन्वे करना होता है, और वो जब हम कन्वे करते हैं तो वो सही निकल जाते हैं। तो वो मैम की प्रोसेस होती ही है। तो मुझे बस यही बोलना था कि वो धीरे धीरे, हमें भी नहीं पता, और कई बार हमें आकाशिक में जाने की भी जरूरत नहीं होती, मैसेजेस है वो डाउनलोड हो जाते हैं। तो जस्ट दिस आई वांटेड टू शेयर। या बिकॉज करेक्ट, वो हमें भी नहीं पता कि वो कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने एनरोल किया है, आपके जर्नी में शिफ्ट जरूर आएगा। ये हम में से कोई नहीं इसको वो कर रहा, आपके हायर सेल्फ ने डिसाइड किया इस जर्नी। मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, वो आप सबको पता है। हाँ मैं लिस्ट दे देती हूँ, मैं ये कवर करूंगी, पर मैं कुछ और भी कवर कर देती हूँ और बहुत कुछ हो जाता है, राइट। एक्चुअल क्लास कब से स्टार्ट है? अगले वेडनेसडे से? हम लेट नहीं करना चाहता ना मैडम। हाँ हाँ, वेडनेसडे से मैं स्टार्ट कर दूंगी। मैं सर की ठीक है, सुन नहीं रही थैंक थी मैं सर की बात, मैं भी बोर हो गई, यू मैडम। कितना करेंगे हम। वेडनेसडे से शुरू है। ठीक है, थैंक यू। ओके बाय एवरीबॉडी, टेक बाय केयर। मैडम। Bye, bye, bye.